دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 13۔ پروفیسر اپنی اور کمانڈر علی کی جان بچانے کے لیے مختلف چیزوں کی آڑ لیتے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے ٹرک کے نزدیک پہنچ کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بچ جانے والے فوجی دور دور تھے، موقع مناسب تھا۔ وہ ٹرک پر چڑھے اور اسے ڈرائیو کرتے ہوئے کمانڈر علی کے پاس لے آئے۔ آفیسر ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو ختم ہوتے دیکھ رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو کمانڈر علی کے جسم سے لہو ابلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر علی نے ٹرک کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ درخت کی آڑ سے نکلا۔ ٹھیک اسی وقت آفیسر نے اپنی ٹیلی اسکوپ رائفل سیدھی کی اور اس کی دوربین کو اپنی آنکھ سے لگا کر علی کا نشانہ لینے لگا۔ کمانڈر علی جب اس کی زد میں آ گیا تو اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا علی نے چھلانگ لگائی اور ٹرک کے پیچھے حصے میں سوار ہو گیا۔ ٹرک میں گرتے ہی وہ لیٹ گیا، اس لیے آفیسر کو گولی سے بچ گیا۔ کمانڈر علی نے چیخ کر پروفیسر کو ہدایت کی کہ وہ آگے کی طرف بڑھتے رہیں۔ پروفیسر نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ علی حیران تھا کہ وہ تو فقط 5 فوجی تھے اور اس نے 5 سے زیادہ کو واصل جہنم کر دیا تھا، پھر بھی ان کی تعداد اتنی ہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے 4-5 موٹر سائیکل سوار فوجی نکل آئے جو ان کے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ علی مسلسل ان پر فائر کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ادھر تھی، اس لیے ان 2 فوجیوں کو دیکھ نہ پایا جو موٹر سائیکل پر سوار بائیں طرف سے ٹرک کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نشانہ پر رکھے ہوئے تھا، اس لیے وہ اس بائک والے کو بھی نہ دیکھ سکا جو دائیں طرف سے طوفانی رفتار سے ٹرک کے قریب آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ٹرک کی باڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر موڑ بائک کو چھوڑ دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کمال پھرتی سے اسے لات مار کر دور دھکیل دیا اور خود چھلانگ لگا کر ٹرک پر چڑھ گیا تھا۔ علی چونکا دوسری طرف متوجہ تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا یا پھر اسے مہلت نہ ملی۔ وہ فوجی جس کا چہرہ چوڑا تھا اور جسم کثر تھی، وہ اس سے لپٹ گیا تھا۔ وہ بے حد طاقتور تھا، کسی اڑنے بھینسے کی طرح مضبوط۔ چند لمحوں کے لیے تو علی کو اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے سانس بھی رکنے لگی تھی۔ علی نے جھٹکا دے کر اپنی کوہنی چھڑائی اور پھر وہی کوہنی اس نے فوجی کی پسلیوں پر ماری تو وہ اوں کی آواز کے ساتھ دوہرا ہو گیا۔ علی کے لیے اتنی مہلت بہت تھی، اس نے اس فوجی کو دونوں بازوں سے پکڑا اور اسے اٹھا کر انجن کی طرف اچھال دیا۔ وہ بونٹ پر گرا تھا اور پھر وہاں سے پھسل کر نیچے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ٹرک کے درمیان میں گرا تھا اور ٹرک اس پر سے گزر گیا تھا۔ دونوں پہیے اس کے دائیں اور بائیں سے گزر گئے تھے۔ وہ صحیح سلامت تھا اور اس کے 2 ساتھی جو موٹر سائیکل پر ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے اڑتے چلے آ رہے تھے اسے کچلتے ہوئے گزر گئے۔ علی نے ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد اپنی گن پھر سے سیدھی کر لی اور تعاقب کرنے والوں پر گولیاں برسانے لگا۔ اب پیچھا کرنے والے گھٹ کر 2 رہ گئے تھے کہ پروفیسر نے چیخ کر کہا، علی دیکھنا۔ کمانڈر علی نے گردن باہر نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ایک اور ٹرک کھڑا تھا۔ پروفیسر نے اس فوجی ٹرک سے بچنے کے لیے بریک پر دباؤ بڑھا دیا تھا، مگر وہ ٹکراؤ سے بچ نہ سکا۔ ٹکر ہوتے ہی علی اچھل کر نیچے جا پڑا تھا۔ اب وہ جھاڑیوں کے عقب میں تھا کہ پروفیسر بھی ٹرک کا دروازہ کھول کر سانپ کی طرح پھسلتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ تبھی ان پر کھڑے ہوئے ٹرک کے عقب سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی۔
उस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उन्हें फांसने के लिए हर तरफ फंदे फैला दिए थे। इसलिए उन दोनों को महसूस हुआ कि जैसे वो चूहे दान में फंस चुके हैं। क्या तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की आ रही है जिसका दावा है कि ये उसका दूसरा जन्म है? कैथी ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने ये दावा नहीं किया है, मगर बातों से यही समझा रही है। लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते मुझे यकीन कामल है कि दूसरा जन्म एक घड़ी हुई कहानी है, जिसे हिंदुओं के रिफॉर्मर्स ने लोगों को बुराई से बचाने के लिए, दिल में खौफ बिठाने के लिए घड़ा है। अगर दूसरा जन्म होता तो कुरान पाक में उसका जिक्र जरूर आता, क्योंकि कुरान पाक खुद कहता है कि उसमें कायनात की हर शय का बयान है। फिर दूसरे जन्म का क्यों नहीं है? गुलाम रसूल ने पूछा। फिर वो लड़की कौन है? कैथी ने पूछा। अगर वो फ्रॉड नहीं कर रही तो वो शयातीन में से है। शयातीन और जिन का जिक्र कुरान में है। इस मौजू पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। अल्लामा इब्ने जोजी ने 597 हिजरी में कामल मरजान फिल हकाम अलजान लिखी। अल्लामा इब्ने कीम ने 751 हिजरी में अगाशा अल्तबान मिमन मसाइद अल शैतान लिखी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 91 ईस्वी में लगते अल मरजान फिल हकाम अल हजान लिखी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 505 हिजरी में अहयाम अल अलूम लिखी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने अल साबा, शेख अली मुतकी ने किन्ज़ल अमाल, इब्ने मसला मुकद्दसी ने मसाइबल इंसान, इमाम इब्ने कसीर ने भी शैतान वजन पर रोशनी डाली। इसलिए जिन्नात के वजूद से मैं तो इनकार नहीं कर सकता, गुलाम रसूल ने कहा। यानी वो लड़की जिन्नात में से है। अभी मैं कह नहीं सकता, मगर उसकी हरकत और सकनात पुर इसरार हैं। अभी कल की बात है कि मैं उस कमरे में अकेला बैठा था। दरअसल मैं स्टडी करना चाहता था। मेरी ये कोशिश थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इस डर से मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। अभी ज़्यादा देर ना हुई थी कि मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो मेरे पीछे बेड के नज़दीक खड़ी थी। क्या वो यकायक नमूदार हो गई थी? इसका तो पता नहीं, क्योंकि मैं करवट के बाद लेटा हुआ था। आहट पर पलटा तो वो बेड के नज़दीक खड़ी हुई नजर आई। हो सकता है कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया हो, कैथी बोली। मैंने इस पहलू पर भी गौर किया था, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया था और बाद में भी बंद नजर आया, कोई खुफिया दरवाज़ा। इस पर भी गौर किया है, एक एक इंच ज़मीन को ठोक बजाकर देखा है, क्योंकि एक बार वो मुझे एक तय खाने में भी ले गई थी। मगर हैरत की बात है कि वो तय खाना बाद में ढूंढने पर भी नहीं मिला। वाकई ये तो अजीब बात है। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात है कि वो अपना एक ऐसा नाम बता रही है जो तारीखी अहमियत का हामिल है। क्या नाम बता रही है? तकरीबन 200 साल कबल, यानी इस इलाके पर गोहर अमान नामी सरदार हुकूमत करता था। ये इलाका उन दिनों सबसे मजलूम इलाका था। कभी तिब्बती तो कभी अजबक और कभी काजक हमला करके खूब लूट मार करते। लोगों की जिंदगी अजीरन थी कि कहीं से भटकता हुआ एक अरब स्याह आ गया। वो हिकमत व दानाई में यकता था। इल्मे कीमिया पर भी उसे दस्तरस हासिल थी और अकल में भी उसका सानी ना था। उसे इन मजलूमों पर रहम आ गया और उसने अपनी अकल से इल्मे कीमिया की मदद से ऐसे हथियार बनाकर उन लोगों को दिए जिनके इस्तेमाल से उनकी शिकस्त फतेह में बदलने लगी। हमला आवर इधर का रुख करने से कतराने लगे और उस अरब को निजात दहंदा कहा जाने लगा। गुलाम रसूल ने इस इलाके की तारीख पर रोशनी डालते हुए बताया, उस अरब नौजवान की अक्ल व दानाई, इल्म व हिकमत से यहाँ के सरदार की बेटी जोनो मुतासर हो गई। वो अपना दिल हार बैठी, जबकि जोनो का मंगेतर भी कम बहादुर ना था। वो यहाँ का सिपा सालार था। मेरे पास जो लड़की आई थी उसने भी अपना नाम जोनो बताया है। जोनो इस इलाके का कॉमन नेम है। हर तीसरी लड़की का ये नाम होता है। इस रुख पर क्यों नहीं सोचते? उस लड़की से मुलाकात से पहले मुझे अपने कमरे में चांदनी की एक पट्टी नजर आई थी और उस पट्टी पर एक अजीबो गरीब भयानक शक्ल वाली शबी दिखाई दी थी। उसे किस खाने में फिट करोगी? भाई देखो, मैं ठहरी DNA रिसर्च स्कॉलर, मैं ख्यालों मफरूजों पर यकीन नहीं रखती। अगर मेरा ख्याल सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने ही बताया था कि तुम्हारे कुरान पाक में गलत। कुरान पाक सिर्फ हमारा नहीं है, ये तमाम आलम के लिए है, जिसमें ज़मीन, चांद, मरीख, ज़हरा, मुश्तरी, अतारद वगैरह भी शामिल हैं।
یعنی تمام کائنات کے لیے ہے یہ، کیونکہ یہ کلام اس کا ہے جو رب المشرق اور رب المغربین ہے۔ اگر وہ خود کو رب المشرق اور مغرب کہتا تو ہم سمجھتے کہ یہ کلام جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا رہا ہے کہ یہ کلام مغربوں اور مشرقوں کے رب کا ہے۔ اچھا میں کہہ رہی تھی کہ تم نے ہی بتایا تھا قرآن پاک میں ڈی این اے کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی ڈی این اے کے زیر اثر تحت الشعور کے حکم پر کھینچ آئی ہو۔ تم نے تو میری پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب مجھے اس پہلو پر بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ لڑکی انجانے میں ڈی این اے کے حکم پر ایسا کر رہی ہو، یہ انسانی جسم کا پر اسرار حاکم ڈی این اے اسے ورگلا رہا ہو۔ کمانڈر علی نے اپنی جیب ٹٹولی تو انگلیاں گرینڈ سے ٹکرائیں۔ اس نے پھرتی سے وہ گرینڈ نکالا اور اپنے دانتوں سے پن کو کھینچ کر فوجیوں پر اچھال دیا۔ زبردست دھماکہ ہوا اور ان کے پیروں تلے کی زمین کانپ اٹھی۔ فوجیوں کے پرخچے اڑ گئے اور ان میں سے ایک فوجی دھماکہ ہوتے ہی فضا میں اچھلا اور پھر جلتے ہوئے کوئلے کی صورت میں نیچے گرا۔ پروفیسر عثمان نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بڑی دیر سے قتل و خون کا یہ کھیل دیکھ رہے تھے۔ 20 سے زیادہ فوجیوں کی موت دیکھ چکے تھے، لیکن یہ موت سب سے بھیانک تھی، کربناک تھی۔ ٹرک اسٹارٹ کریں، کمانڈر علی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، ورنہ مزید فوجی آ جائیں گے۔ یہ آوازیں دور دور تک سنی گئی ہوں گی۔ پروفیسر نے گیئر بدلا، ٹرن لیا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ فوجی ٹرک اوبر کھابڑ اونچے نیچے راستے پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ پروفیسر کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی کہ وہ ذرا بھی تھکن محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ڈرائیور کیے جا رہے تھے اور انہیں یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کنٹرول لائن کی طرف جانے کی بجائے مخالف سمت میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جانے کے بعد پروفیسر نے اونچی آواز میں پکارا، علی جی کیا میں ادھر آ جاؤں؟ مگر پچھلی طرف گارڈ کون کرے گا؟ ٹرک کے عقبی حصے سے علی کی آواز سنائی دی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہمیں تو کنٹرول لائن کی طرف جانا تھا۔ کنٹرول لائن کو بھول جائیں، اب ادھر خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، زبردست ناکہ بندی کی گئی ہوگی۔ خدا نخواستہ ہم ادھر گئے تو موت ہی ملے گی، علی نے جواب میں کہا۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ آگے جا کر ٹرک چھوڑ دیں گے، آگے مرکزی شاہراہ ہے، وہاں سے ہمیں بآسانی سری نگر کی بسیں مل جائیں گی۔ کچھ دن ہم سری نگر میں رہ لیں گے، جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو کنٹرول لائن کراس کر لیں گے۔ پروفیسر نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد انہوں نے خود ہی ٹرک کو روک دیا، کیونکہ اب وہ پختہ سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ کمانڈر علی نے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور نیچے اتر پڑا۔ پھر دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے سیدھے سیدھے بڑھنے لگے۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں پختہ مکانات نظر آنے لگے، گو کہ وہ کافی دور تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا موٹا بازار ہے۔ وہ دونوں ادھر ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ اس بازار میں پہنچ کر کمانڈر علی نے پروفیسر سے کہا، آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کا لہجہ چگلی کھا لے گا۔ اب آپ اس علاقے کے نہیں ہیں، یہاں سے ہم بس کے ذریعے سری نگر جائیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کی بس آ کر رکی۔ وہ دونوں ٹکٹ لے کر اس میں سوار ہو گئے۔ سری نگر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ پروفیسر کے دل میں جو ڈر تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ سری نگر میں داخل ہوتے ہی وہ کلی طور پر محفوظ ہو جاتے۔ وہ اتنا بڑا شہر تھا کہ کسی ایک کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر کمانڈر علی کی کئی پناہ گاہیں بھی تھی۔ اس کی تنظیم کے 2 دفاتر تھے جو زیر زمین کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جہادی تنظیموں کے علاوہ لوگ بھی تھے جو بوقت ضرورت کام آ سکتے تھے۔ یہ بات اس نے پروفیسر کو بھی بتا دی تھی، اسی لیے پروفیسر عثمان مطمئن تھے۔ لیکن یہ اطمینان کا دورانیہ طویل ثابت نہ ہوا۔ بس ابھی سری نگر کے مفاذات میں پہنچی ہی تھی کہ وہ چونک پڑے۔ سڑک پر بیریئر لگا کر گاڑیوں کو روکا گیا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف رائفل سیدھی کیے فوجی مستعد کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ فوجی آنے جانے والی گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ پروفیسر صاحب اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ رہ گیا ہے تو اسے سیٹ کے نیچے ڈال دیں، کمانڈر علی نے سرگوشی میں کہا۔ نہیں، میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، پروفیسر نے بس میں چڑھتے ہوئے فوجیوں کی طرف دیکھ کر نیچی آواز میں جواب دیا۔ یہاں کی یہ عام بات ہے کہ تلاشی کے وقت مارا پیٹا جاتا ہے۔ اگر میرے یا آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو تو بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ یوں بھی یہ جگہ ایسی ہے نہیں، ماحول و حالات کا بھی یہی تقاضا ہے، علی بولا۔
इतनी देर में वह दोनों फौजी मुख्तलिफ लोगों की तलाशी लेते हुए उनके करीब पहुंच गए और उनमें से एक ने प्रोफेसर की तरफ देखकर पूछा, ए बुड्ढे, कहाँ से आ रहा है? जी, मैं सतगाम से आ रहा हूँ। प्रोफेसर ने रास्ते में आने वाली एक रीढ़ का नाम बता दिया। लेकिन तुम उधर के तो लगते नहीं हो, क्या नाम है? फौजी ने पूछा। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। रास्ते में अली ने पूरी तरह फीड कर दिया था, इसलिए उन्होंने वही बात बताई जो उन्हें समझाया गया था। आप नीचे उतर आएं, प्रोफेसर से कहकर उसने अली की तरफ देखा। ये मेरे चचा को आप कहाँ ले जा रहे हैं? अली ने पूछा। आप भी नीचे आ जाएं। उसने अली से कुछ न पूछा, सीधे ले जाकर बंद गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी और दरवाज़ा खुला तो उन्होंने खुद को एक बंद गैराज में पाया। हमें इन्वेस्टिगेशन सेंटर में लाया गया है, हिम्मत से काम लेंगे। कितना भी काम हो, आप अपना सही तारफ नहीं कराएंगे, वरना मामला और भी गंभीर हो जाएगा। ये तो हर रोज़ 10-12 लोगों को पकड़ कर लाते हैं ताकि रिहाई के नाम पर मोटी रकम ईंट सके। मेरी तरफ से तो काल पर रकम आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। रात का आखिरी पहर था। गुलाम रसूल कुछ ही देर पहले सोया था। उसे सितारा शनासी पर एक काफ़ी पुरानी किताब मिल गई थी। गो कि यह किताब तिब्बती ज़बान में थी, मगर उसके हाशिया पर फ़ारसी में किसी ने नोट लिखा था। तिब्बती ज़बान इसकी समझ से बाहर थी, मगर वह फ़ारसी लिख पढ़ और बोल लेता था, इसलिए वो नोटिस की मदद से बहुत कुछ समझ चुका था। ये किताब उसे उसी गांव के एक शख्स ने दी थी। उसका कहना था कि यह किताब कई पुश्तों पहले एक बुजुर्ग के हाथ लगी थी, तभी से ये उनके पास महफूज चली आ रही है। किताब के हाशिए पर जो नोटिस थे उसे ही पढ़ते पढ़ते वह सो गया था। उसे सोए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शाने को पकड़कर हिलाया हो। वो चौंक कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था। प्रोफेसर उस्मान ने हवेली खरीदने के बाद तय खाने में जनरेटर लगवा दिया था, जिसकी वजह से यह हवेली रात के वक्त बकायदा नूर बनी रहती थी। गुलाम रसूल की आदत थी कि वह सोने से पहले ट्यूब लाइट ऑफ कर देता और ज़ीरो पावर का नीला बल्ब जला लेता, मगर इस वक्त वो भी बुझा हुआ था और उसकी वजह से कमरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। गुलाम रसूल बिस्तर पर बैठा उस अंधेरे के बारे में सोच रहा था। उसका ख्याल था कि जनरेटर फेल हो गया है, उसमें क्या खराबी है, ये देखने के लिए वह बिस्तर से उतरा और टटोलता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा। उसकी आदत थी कि वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ों को अलमारी के ऊपर रखता था। टार्च भी वहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अलमारी के ऊपर हाथ चलाने लगा। काफ़ी देर टटोलने के बाद भी जब उसे टार्च नहीं मिली तो वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कैथी के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा अंदर से मुकफ़ल था, मगर खिड़की खुली हुई थी। उसने खिड़की से अंदर झांका। बिस्तर पर सफ़ेद चादर थी और खुद स्याह नाइट गाउन पहने हुए थी, इसलिए नजर आ गई। गुलाम रसूल ने उसे कई आवाज़ें दी। उसने ना उठना था ना उठी, शायद बहुत गहरी नींद में थी। वो उधर से मायूस होकर नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ा। किचन के साथ चौकीदार और बावर्ची का कमरा था। वो दोनों भी बेखबर सो रहे थे। उन्होंने भी बंद कमरे कर रखे थे, इसलिए गुलाम रसूल पर जल्लाहट सवार हो गई। वो पैर पटकता हुआ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और उसके गलियारे और कमरों में खिड़की दरवाज़ों से सितारों की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तहखाने की सीढ़ियाँ इस तरह से अंधेरी थी जैसे स्याही की चादर फैली हो। वो अंदाजे से नीचे उतरने लगा। अभी उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि बुरी तरह चौंक गया। आखिरी सीढ़ी पर एक स्याह ओला खड़ा था। हैरत की बात यह थी कि उसका चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे आग की लपेटें उठ रही हों। ए, कौन है वहाँ? गुलाम रसूल ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। तुम्हारा दोस्त, और अगर बात ना मानी तो तुम्हारी मौत, नीचे से खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा? मेरी मौत? भैया मेरे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर शय को फना होना है, मुझे भी मौत आएगी, तो फिर क्यों ना मैं आज ही उससे मुलाकात कर लूँ। ये कहकर वो एक सीढ़ी नीचे उतरा। कहने को तो उसने इतना कुछ कह दिया था, दर हकीकत में वो दिल ही दिल में किसी हद तक सहम गया था, लेकिन वो अपने आप को खौफज़दा ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने हवास पर काबू रखा और निस्बतन मजबूत लहजे में बोला, तुमने अपना तो तारफ़ कराया मगर अधूरा, अब ज़रा सही तारफ़ कराओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है।
मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हें होशियार कर दूं। अभी भी वक्त है, तुम दोनों से प्रोफेसर की मुलाकात करा दो। प्रोफेसर तो यहाँ है ही नहीं, फिर क्या उनके फरिश्तों से मुलाकात कराऊं? गुलाम रसूल ने हंसकर कहा। जैसे ही आए उनसे मुलाकात का बंदोबस्त कराओ और उनके नोटिस जो उन्होंने यहाँ आने के बाद तैयार किए हैं उसे जोनू को दे दो। और अगर मैं ना दूं तो? गुलाम रसूल ने बेखौफी का मुजाहरा करते हुए 2 सीढ़ियां नीचे उतरा। वहीं रुक जाओ। क्यों? ये कहकर उसने 2 सीढ़ियां और तय कर ली। तुम ऐसे नहीं मानोगे, उस हयोले ने कहा और अपने दाहिने हाथ को झटका दिया। गुलाम रसूल को ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे से कुछ टकराया हो, फिर उसे होश ना रहा। गुलाम रसूल का जहन उलझ कर रह गया था। जितना गौर करता वो उतना ही उलझ जाता। रह रह कर उसकी नज़रों के सामने रात का मंजर आ जाता। होश खोने से पहले तक वो उस चमकदार चेहरे वाले हयोले की तरफ बढ़ता रहा था। अंधेरी सीढ़ियों पर चमकता हुआ चेहरा और चेहरे से फूटती हल्की हल्की रोशनी, और उस रोशनी में हिलते हुए होंठों पर यह हुक्म कि गुलाम रसूल, अगर तुमने इस लड़की को प्रोफेसर उस्मान से ना मिलवाया तो नुकसान में रहोगे। पहले रोज चांदनी की चमकदार पट्टी पर बेहानक शक्ल नजर आई, और अब ये अजीबल खलकत चेहरा। वो बुरी तरह उलझ कर रह गया था। जहन माऊफ हो गया था। दिमाग के बोझ को कम करने के लिए ही वो घर से निकला था। उसने सोचा था कि बाहर की खुली हवा अच्छा असर दिखाएगी, जहन का बोझ खुद ब खुद कम हो जाएगा। आज जुमे का दिन था, तमाम दिनों में सबसे मुबारक दिन। उस दिन पड़ोस के गांव के हिमा हिमी में वो जहनी टेंशन से आज़ाद हो जाएगा, इसीलिए वो बाजार की तरफ मुड़ गया था। पड़ोस का वो गांव तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। इस फासले को पैदल तय करना आसान ना था, इसलिए उसने प्रोफेसर की फ़ियाट निकाल ली थी और अब इसी फ़ियाट में सवार वो गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव के अकबी हिस्से में बाजार था। उस बाजार में ग़िज़ाई अजनास, कपड़े और ज़रूरत ज़िंदगी की मामूल चीज़ें बिकती थीं। उसे कुछ खरीदना तो था नहीं, सिर्फ तफरीह के लिए जा रहा था ताकि दिमागी दबाव कम हो जाए। दिमाग पर दबाव हो तो रास्ते का पहाड़ भी नजर नहीं आता। यही हुआ था। यकायक ही उसकी नज़र रास्ते के दरमियान खड़े बैल पर पड़ी थी। उसे बचाने के लिए उसने स्टीयरिंग को फुर्ती से मोड़ा और यही हरकत उसके लिए गले की हड्डी बन गई। गाड़ी एक तोदे से टकराई। इंसान ख्वाह शहर का हो या गांव का, इस फितरत में तमाशबीनी होती है। आते जाते लोग रुक गए और उसके गिर्द मजमा सा लग गया। ये बात उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। फिर वो शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने गाड़ी मोड़ ली। उसने बाजार जाने का ख्याल तर्क कर दिया। वो वापसी के रास्ते पर चल रहा था कि गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए। इंजन से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। फिर वो रुक गई। गुलाम रसूल नीचे उतरा और उसने बोनट उठाया तो गर्म भाप का भभका सा उठा। रेडिएटर का पानी खुश्क हो चुका था। वो एक तरफ खड़ा हो गया। पानी कहाँ से लाए, वो इसी बात पर गौर कर रहा था कि उसकी नज़र सामने से आती हुई एक लड़की पर पड़ी। 17-18 साल की वो लड़की कमर पर पानी का मटका उठाए उसी की तरफ चली आ रही थी। ये अमेरिका का मैनहट्टन बाजार नहीं था कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के पास बेझिझक चली आए। ये बलूचिस्तान का एक पसमानदा गांव था। यहाँ लड़कियां बेशर्मी का मुजाहरा नहीं करती, हिजाब की चादर से खुद को ढके रखती हैं। ये अलूदरा कर मशरकी हुस्न को दुबाला करती हैं, मगर वो दोशीदा तीर की तरह उसकी तरफ खींची चली आ रही थी। नज़दीक पहुंचकर उसने पूछा, लो पानी चाहिए ना, मैं ले आई हूँ। गुलाम रसूल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस लड़की में ऐसी कोई बात ज़रूर थी जो उसे आम लड़कियों से मुनफरिद कर रही थी। लड़की के मुंह से पानी का जिक्र सुनकर एक अत्मीनान उसके हौसले की दीवारों को मजबूत कर गया। उसने आगे बढ़कर पानी का मटका लिया और रेडिएटर का ढक्कन खोलकर उसमें मटके से पानी की धार गिराने लगा। मटका खाली हो गया। गुलाम रसूल ने खाली मटका तशक्कर से लड़की की तरफ बढ़ाया। इंजन ठंडा होने में अभी देर है, वो सामने मेरा घर है, आओ कुछ देर वहां बैठ जाओ फिर चले जाना, लड़की ने खुले अल्फाज में दावत दी। गुलाम रसूल खाली खाली आंखों से उसे देखता रहा। जवाब ना मिलने पर वो बोली, क्यों मेरे साथ जाने से डर रहे हो? मत डरो। अपना कद, जिस्म और मर्द ज़ात, इन्हें मेरी निगाहों से ना गिराओ। बिला खौफ व तरद्दुद चले आओ। लड़की ने जब उसके अंदर मर्दाना हौसले और गैरत को बेदार किया तो वह तैयार हो गया और उसके साथ चल पड़ा।
वो सामने ही ऊंचाई पर बने एक झोंपड़े में रहती थी। उस झोंपड़े का दरवाजा कच्ची सड़क की तरफ निकलता था। शायद उसने वहीं से उसे देख लिया था और भांप लिया था कि उसे पानी की जरूरत है और पानी ले आई थी। गुलाम रसूल उसके साथ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वो झोंपड़ी अंदर से काफी कुशादा और साफ सुथरी थी। एक तरफ नवाड़ का पलंग बिछा हुआ था। उसने गुलाम रसूल को बैठने का इशारा किया और एक बड़े से कटोरे में दूध ले आई। लो पी लो। गुलाम रसूल ने कटोरा थाम लिया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़की को पहचानता हो, वो उसकी जानी पहचानी है, मगर उसे कहाँ देखा है ये समझ में नहीं आ रहा था। ज़हन पर जोर देने के बाद भी उसे याद ना आ सका और थक हार कर उसने दूध के कटोरे से मुंह लगा लिया। कई घूंट लेने के बाद उसने कटोरा रख दिया। फिर बोला, मेहमान नवाजी का शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, फिर कभी इधर आना हो तो बिला झिझक आइएगा। जी अच्छा। वो ये कहकर वो बाहर निकल आया। अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, बोनट को गिराकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। अभी उसने अग्रेशन में चाबी घुमाई थी कि बुरी तरह चौंक पड़ा। अचानक ही उसकी नजर उठ गई थी। विंड स्क्रीन के सामने वाली पहाड़ी साफ नजर आ रही थी, मगर उस पहाड़ी पर वो झोंपड़ा नहीं था जहां बैठकर उसने दूध भरा कटोरा खाली किया था। या मजहर अल अजायब, ये क्या माजरा है, वो बड़बड़ाया और गाड़ी से उतरकर सामने सड़क किनारे चावल की दुकान लगाए बैठे शख्स की तरफ बढ़ा। वो दुकानदार पिस्ता कद, गंदमी रंगत और चिपटे चेहरे वाला लतस्तानी था। वो भी बगौर उसे देख रहा था। नजदीक पहुंचकर गुलाम रसूल ने उससे पूछा, भाई साहब, सामने वाले उस पहाड़ी पर एक झोंपड़ा हुआ करता था? हाँ, माजी में यहाँ एक झोंपड़ा था, लेकिन ये तब की बात है जब मैं 11-12 साल का बच्चा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो घर खाली हो गया। सुनते हैं कि उस घर के मकीन किसी हादसे में मारे गए थे, मगर ये बात आपको किसने बताई? बूढ़े के लहजे में हैरत थी। गुलाम रसूल का जहन चकरा उठा। अभी कुछ देर पहले ही तो वो उस झोंपड़े में गया था।